You all know LDE with constant coefficient can be written in this very popular form, f of d operating on y giving x. Now when x is some constant function denoted by k, so k may be any number, 2, 3, 4, 5, any real number, then 1 upon f of d operating on k by short method formula is nothing but 1 upon f of 0 into k. See, this is 1 upon f of d operating on k, and its resultant by the formula of short method is going to be 1 upon f of 0 into k. काय करायचं आपल्याला, d च्या ऐवजी ह्या पॉलिनॉमियलमध्ये 0 ठेवायचं आहे आणि k नी मल्टिप्लाय करायचं आहे 1 अपॉन f ऑफ 0 ला. f ऑफ 0 काही पण व्हॅल्यू असू शकते, नॉन झिरो व्हॅल्यू असणार आहे ती, अँड 1 अपॉन f of 0 will be some number, real number, and k times that number will be the resultant of this 1 upon f of d operating on k. As an example, find particular integral of d cube minus 1 operating on y giving me a. So try to understand the question. Firstly, they have asked only particular integral. Particular integral of this equation will be 1 upon d cube minus 1 operating on a. A is a constant. Fine. And what is the formula? 1 upon f of d operating on k. It is 1 upon f of 0 into k. So, for constant you have to substitute 0 for d. Whenever the function is constant, substitute 0 in place of d and multiply by a to this. So, that is what we have done. Instead of d we have written 0. 0 cube minus 1, that is 0 minus 1 is minus 1, a upon minus 1 is minus a. So this is how we find particular integral corresponding to a constant function a. Okay. If this is clear, let me go for another example. Find particular integral of d square plus 5d plus 2 operating on y is equals to 4. So this is f of d operating on y giving a constant function 4. Particular integral will be 1 upon d square plus 5d plus 2 operating on 4. Instead of d we have to substitute 0. So it will be 0 square plus 5 into 0 plus 2 into 4 is equal to 4 upon, so this is 0 plus 0 plus 2, so that is 2 in all. 4 upon 2 is 2. The particular integral corresponding to this function is 2. Likewise, you find for this. Note down this question. Find particular integral of d square plus d plus 1 operating on y giving 6. Solve this. इसका आंसर क्या आएगा? 6 is constant function. 6. Yes, it's correct. क्या करना है आपको? इसको इधर डिनोमिनेटर में लेना है. एक्चुअली हम डिनोमिनेटर में नहीं लेते, इसका रेसिप्रोकल ऑपरेटर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ऑपरेट करना है 6 पे. तो बाय द फॉर्मूला डी की जगह पे 0 रखना है. 0 स्क्वायर प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 6 अपॉन 1 इज 6. So the answer is 6. That's correct. वेरी गुड. तो कांस्टेंट का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे ढूंढेंगे? अगर समझ गया तो हम आगे बढ़ते हैं. छोटी सी केस थी ये, ज्यादा लेंदी नहीं थी एक्सपोनेंशियल के जैसे. अब टाइप 3, कंसिडर द एल डी एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स इफ द राइट हैंड साइड फंक्शन कैपिटल एक्स कंटेन्स द फंक्शन a raised to x. Try to understand the function. It is a raised to x. A is some integer value, say 2 raised to x, 5 raised to x, 7 raised to x and so on. अगर ऐसा फंक्शन राइट हैंड साइड में होगा तो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर इंटीग्रल ढूंढने का शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन a raised to x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ log ऑफ a into a raised to x. तो व्हॉट वी आर सपोज टू डू, डी च्या ऐवजी log ऑफ a सबस्टिट्यूट करायचं आहे. a आयडेंटिफाय करा, a नोट डाऊन करा,
डीच्या ऐवजी ह्या पॉलिनॉमियलमध्ये लॉग ए ठेवा, मग डी स्क्वेअरच्या ऐवजी लॉग ए होल स्क्वेअर, डी क्यूबच्या ऐवजी लॉग ए होल क्यूब एंड सो ऑन एंड इनटू ए रेज टू एक्स. तो ये फॉर्मूला है शॉर्ट मेथड का ए रेज टू एक्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल ढूंढने के लिए. यू लर्न दिस बाय हार्ट. ये फॉर्मूलेज भी पूछ सकती हूँ मैं 2-2 मार्क्स के लिए, 1-1 मार्क्स के लिए. तो अगर आपको ये क्लियर है तो मैं ये एग्जाम्पल के लिए जाती हूँ. फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d2x by dt square plus n square x equals to 3 raised to t. Now let us try to understand this. सबसे पहले तो ये सिंबॉलिक नोटेशन में नहीं है. सिंबॉलिक नोटेशन कैसा होता है? f of d on y गिविंग कैपिटल x. ये पहली बात है. तो सबसे पहले हमको सिंबॉलिक फॉर्म में जाना पड़ेगा. सेकेंड थिंग इज यहाँ पे x डिपेंड्स ऑन t है, x इज डिपेंडेंट ऑन t. थर्ड थिंग n स्क्वायर x का कोएफिशिएंट है और जो कि कांस्टेंट है. ये 3 बातों को ध्यान में रख के हम सबसे पहले इसको सिंबॉलिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो पहले हमने दिए हुए इक्वेशन को लिखा, इट इज सेकेंड ऑर्डर LDE वेयर x डिपेंड्स ऑन t एंड द राइट हैंड साइड is a function of the type a raised to t where a का value is 3. So d square plus n square, x common लिया. You remember that procedure? I hope you remember that procedure. x common लिया and then so this is f of d operating on x giving a function of t. So this you can take as capital T. वहाँ पे capital X था, यहाँ पे capital T. ऐसे थोड़ा कंपैरेटिवली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इसे, राइट. पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1/d square plus n square operating on 3 raised to t. By the formula, this formula, what are we supposed to do? We have to identify a. a का value is 3, d च्या ऐवजी log 3 ठेवायचं आहे. So that is what we have done. Particular integral is equals to 1/d च्या ऐवजी log 3 whole square plus n square into 3 raised to t. So it is finally in simplified form 3 raised to t upon log of 3 whole square plus n square. Is this clear to each one of you? अब यहाँ पे आइए. Find particular integral of d square plus 2d plus 1 y equals to 5 raised to x. So a का वैल्यू इज 5, ये f of d है. पर्टिकुलर इंटीग्रल का बेसिक फॉर्मूला लगा दिया, 1/f of d ऑपरेटिंग ऑन a raised to x. ये फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पर d को रिप्लेस करेंगे log a से. यहाँ पर a की वैल्यू 5 है तो log 5 से रिप्लेसमेंट होगी. log of 5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू log of 5 प्लस 1 इंटू 5 raised to x. So this can further be simplified. Actually this is nothing but expansion a square plus 2ab plus b square. So it is nothing but a plus b whole square. So उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर कर दिया उसे और सिंप्लीफाई कर दिया या और कॉम्पैक्ट कर दिया. log of 5 plus 1 whole square into 5 raised to x. So the particular integral corresponding to this differential equation is 5 raised to x upon log of 5 plus 1 whole square. यहाँ तक आ गया सबको समझ में? क्लियर है? तो देन आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन if this is clear. कांस्टेंट के लिए d के जगह पे 0 रखना है, a raised to x के लिए d के जगह पे log a रखना है. अब कुछ बातें जो हमको नोट करनी चाहिए, अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में ये गलत करते हैं. देखिए log a raised to b and log of a raised to b, these two are different things. कैसे डिफरेंट है? log of a to the power b का मीनिंग क्या है?
लॉग ऑफ a इंटू ए, ये a का प्रोडक्ट कितनी बार लेना है, b टाइम्स, इज व्हॉट वी मीन बाय a रेज टू b, इजंट इट. तर लॉग ऑफ a रेज टू b म्हणजे लॉग ऑफ a इंटू ए असं b टाइम्स. आणि लॉग ऑफ a होल रेज टू b म्हणजेच काय, लॉग ऑफ a इंटू लॉग ऑफ a इंटू लॉग ऑफ a, हे प्रोडक्ट लॉग एचं कितीदा, b टाइम्स. तो ये फर्क आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, इसीलिए मैंने इसको खास करके आपके लिए लिखा है. अब लॉगरिथमिक रूल क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है. लॉगरिथमिक रूल कहता है लॉग ऑफ a टू द पावर b, a रेज टू b का लॉगरिथमिक वैल्यू इज नथिंग बट b टाइम्स लॉग ऑफ a, इज नथिंग बट b टाइम्स लॉग ऑफ a. तो ये याद रखिएगा कि log of a whole raised to b is not equals to b times log of a. Log of a whole raised to b is not equals to b times log of a. This is the point to be remembered. And with this basics in our mind, I ask you another question. Find particular integral of d cube y upon dx cube minus d2y upon dx square minus 18y equals to 7 raised to x. Note down this question and try to answer it. पहले इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, a रेज टू x में a आइडेंटिफाई करो, d के जगह पर log a सब्स्टिट्यूट करो एंड टेल मी द आंसर. क्वेश्चन कॉपी करा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 18y इक्वल्स टू 7 रेज टू x. What is the answer? हेलो मैम. हाँ हाँ बोला बोला. 1 divided by log of a cube minus n cube minus 18 into 7 raised to x. 1 divided by log a raised to 3. a क्या है, log of a 7. हाँ अभी बताइए अभी बताइए. log 7 raised to 3 हाँ minus n square. n स्क्वायर, n का है मैम मैम 1 अपॉन D- 1 अपॉन लॉग 7 क्यूब माइनस 18 स्क्वायर होल स्क्वायर. 1 पुन्हा सांग अब्दुल हबीब, आप थोड़ा उसको रिवाइज करो, तब तक आप बताइए. 1 अपॉन लॉग 7 क्यूब माइनस 18 होल स्क्वायर. नहीं नहीं, होल स्क्वायर कैसे हो जाएगा, वो तो वहां पे हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा. फिर से चेक करो. एनी अदर आंसर्स? एनी अदर आंसर्स? मैम ये इक्वेशन कैसी होंगी, उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? हाँ, इक्वेशन कैसी बनेगी, इक्वेशन कहाँ बना रहे हैं हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल ढूंढ रहे हैं हम. इस इक्वेशन का पर्टिकुलर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट ढूंढ रहे हैं. तो क्या करोगे आप, पहले इसको सिंबॉलिक में लिखा आपने. सिंबॉलिक क्या आ रहा है, एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू एक्स में क्या आ रहा है, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 18. अब आ गया मैम. हाँ अभी बताइए.
log 7 raised to cube हाँ minus log 7 square हाँ minus 18 राइट into 7 raised to x. यस अभी ठीक है दिस इज द आंसर 7 रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय डी क्यूब है तो log 7 आएगा दिस इज 7 एंड -18 आ रहा है सबको ध्यान में ठीक है ये यस मैम सबको समझ गया है तो फिर हम नेक्स्ट टाइप के लिए आगे बढ़ते हैं ये दो छोटे छोटे टाइप्स थे आ रहा है ध्यान में अभी इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 3 टाइम्स log 7 है ना वो नहीं लिख सकते ये यहाँ पे इसीलिए मैंने लिख दिया है कुछ बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैंने इसको खास कर यहाँ पे इतना डिस्कशन कर लिया पहले उसमें 2-4 मिनट डाल दिए हमने ये आंसर आ गया सभी का सभी को कन्विंस है ये आगे बढ़ना है शैल आई प्रोसीड फर्दर ये स्टूडेंट्स यस मैम ओके फाइन अब आते हैं टाइप 4 पर हमारा LD एज यूजुअल LD विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है जो ऐसा लिखा जाता है f ऑफ d y इक्वल्स टू कैपिटल X अब राइट हैंड साइड फंक्शन क्या क्या देख लिया हमने एक्सपोनेंशियल देख लिया कांस्टेंट देख लिया a रेज टू x होगा तो देख लिया pi कैसे ढूंढता है शॉर्ट मेथड से अब अज्यूम कीजिए कि आपके राइट हैंड साइड में sin ax प्लस बी या फिर cos ax प्लस बी ऐसे फंक्शंस हैं तो इनसे रिलेटेड पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे ढूंढेंगे शॉर्ट मेथड एक फॉर्मूला देता है एंड द फॉर्मूला इज पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1/f ऑफ d sin ax प्लस b is obtained using the formula 1/f of d square तो d स्क्वायर जैसी टर्म्स कौन सी हो सकती है एक तो d स्क्वायर दूसरा रहेगा d स्क्वायर का स्क्वायर यानी d रेज टू 4 तीसरा रहेगा d स्क्वायर का क्यूब यानी d रेज टू 6 तो ऐसे टर्म्स के लिए रिप्लेसमेंट क्या रहेगी 1/f ऑफ d स्क्वायर यहाँ पे ये चेंज है 1/f ऑफ d नहीं 1/f ऑफ d स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन sin ax plus b equals to 1/f of minus a square into sin ax plus b क्या किया हमने d स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर डाल दिया d स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर लिखा इंटू साइन ए एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई किया रिप्लेसिंग d स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे ध्यान रखिए d स्क्वायर के जगह पे a का स्क्वायर लेना है और उसके साथ एक माइनस साइन अलग से लेनी है इट इज नॉट माइनस a का स्क्वायर इट इज a स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन आई रिपीट replacing d square by minus of a square not minus a whole square this should be very very clear d square च्या ऐवजी ह्या केसमध्ये आपल्याला a square with a minus sign सबस्टिट्यूट करायचं आहे पण दिस इज पॉसिबल हा फॉर्म्युला आपण कधी वापरू शकतो when and only when f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0 डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तब तक ये फॉर्मूला ठीक है एप्लीकेबल है बट अगर डी स्क्वायर के जगह माइनस ए स्क्वायर डी रेस टू 4 की जगह ऐसे जो भी वैल्यूज अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो 0 हो जाता है तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा फिर हमें एक्सपोनेंशियल की तरह और दूसरे फॉर्मूलेज को यूज करना होगा तो डी स्क्वायर की जगह पे तो माइनस ए स्क्वायर रखना है ये तो हम समझ गए राइट लेकिन जरूरी नहीं ना सिर्फ डी स्क्वायर की टर्म्स होगी सपोज डी क्यूब है तो उसके लिए आप कैसे रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे डी क्यूब इज नथिंग बट 3 बार ऑपरेटर लगाना राइट तो डी क्यूब माने कि 2 बार ऑपरेटर लगाना और फिर और 1 बार लगाना तो इसमें आपको क्या हो रहा है
डी स्क्वायर की जगह आप माइनस ए स्क्वायर रख सकते हो, इट इज अलाउड, और डी रहेगा। हाँ, तो साइन ए एक्स प्लस बी के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल ढूंढने का शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर। मैडम ओके ओके, थैंक यू। डी स्क्वायर के जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखना है, डी क्यूब की जगह पे आ जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर डी। ये लर्न कर लीजिए आप। डी रेस टू फोर, डी रेस टू फोर वाली टर्म रहेगी तो उसका कैसे रहेगा? डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर बोला है, और इस डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों में आ जाएगा प्रोडक्ट, दॅट इज ए रेस टू फोर। हे अगदी पाठ करून ठेवा। डी स्क्वेअरच्या ऐवजी मायनस ए स्क्वेअर, डी क्यूबच्या ऐवजी मायनस ए स्क्वेअर डी, डी रेस टू 4 साठी ए रेस टू 4, इसलिए मैंने हाईलाइट करके भी रखा है। इसके जगह ये जाएगा, इसकी जगह ये जाएगा, इसकी जगह ये जाएगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। साइन और कॉस के लिए सेम फॉर्मूला है, सेम ट्रीटमेंट देनी है। रिमेंबर दिस वेरी वेल। साइन ए एक्स प्लस बी असो अथवा कॉस ए एक्स प्लस बी असो, चाहे साइन फंक्शन रहे चाहे कोसाइन फंक्शन रहे, ये सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। फाइन। अब ये तो हो गया कि डी स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में है, डी क्यूब है, डी रेस टू 4 है, तो उनकी व्यवस्था तो ऐसे हो जाएगी रिप्लेसमेंट्स। बट व्हाट इफ 1/d आ जाए, जैसे कि 1/d cos 2x प्लस 3, तो उस केस में आपको पता है डी यानी डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन वंस का इनवर्स ऑपरेटर क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल 1/d आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी होगी। जब कभी 1/d cos 2x प्लस 3 आएगा, फॉर एग्जाम्पल cos का इंटीग्रल होता है sin 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट 2, ऐसे 1/d को ऐसे ट्रीट करोगे। सिमिलरली 1/d स्क्वायर को कैसे करोगे? डबल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक बार परफॉर्म करना और फिर जो आया है उसका फिर से इंटीग्रेशन करना। ये कुछ टिप्स हैं जो हमें आगे काम आने वाले, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब 1/d तो ठीक था इंटीग्रल, लेकिन 1/d प्लस बी इसको कैसे करोगे? या 1/d माइनस बी cos 2x प्लस 3 आएगा, तो उसे कैसे करेंगे? तो डी स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, डी के लिए नहीं है, डी प्लस बी के लिए नहीं है। तो मैंने क्या करना है? डिनोमिनेटर सपोज मेरा डी प्लस बी है, तो उसका कॉन्जुगेट है डी माइनस बी, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डी माइनस बी अपॉन डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी गोना गिव मी डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर माइनस बी रहेगा तो मुझे प्लस बी वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड द रिजल्टेंट गोना बी डी प्लस बी अपॉन डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा? डी प्लस बी बाद में ऑपरेट करेंगे, 1/d स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले ऑपरेट कर लेते हैं, और डी स्क्वायर की जगह रख देंगे माइनस ए स्क्वायर। तो द वैल्यू विल बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट होगा, साइड में आ जाएगा, और ये ऑपरेटर को आपको बाद में फंक्शन दे देनी है, डी प्लस बी को आपको फंक्शन देना है। ये प्रोसीजर समझ में आ गई साइन कोसाइन की? इफ दैट इज क्लियर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक आ गया सबको समझ में? साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी रहेगा, तो डी स्क्वायर के जगह पर माइनस ए स्क्वायर रखना है, डी क्यूब के जगह पर माइनस ए स्क्वायर डी रखना है, ये नोट डाउन कर लीजिए। डी रेस टू 4 की जगह पर ए रेस टू 4 रखना है, और 1/d मतलब 1 टाइम इंटीग्रेशन, 1/d स्क्वायर मतलब ट्वाइस इंटीग्रेशन, 1/d प्लस बी के लिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। ये वाली ट्रिक आपको याद रखनी है। और अगर कुछ रिकॉल करना है तो वो ये है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रल साइन, ये याद रखिए। इस बैकग्राउंड के साथ हम इस एग्जाम्पल के लिए जाते हैं। फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ
d raised to 4 plus m raised to 4 y equals to sin mx. ये एग्जाम्पल का पर्टिकुलर इंटीग्रल ढूंढना है. राइट हैंड साइड में साइन ए एक्स प्लस बी वाली टर्म है. ए की वैल्यू m यहाँ भी है, m यहाँ भी है. a की वैल्यू m, b की वैल्यू 0. ये फॉर्मूला यूज करते हैं. ये फॉर्मूला कहता है डी स्क्वायर के जगह पे माइनस ए स्क्वायर लो. a हमारे केस में m है, तो d रेस टू 4 की रिप्लेसमेंट क्या है? a रेस टू 4. d रेस टू 4 की जगह a रेस टू 4, और यहाँ पे a m है, तो d रेस टू 4 की जगह रखेंगे m रेस टू 4. m रेस टू 4 प्लस m रेस टू 4 इन द डिनोमिनेटर इनटू sin mx. So it is nothing but sin mx upon 2m raised to 4. यहाँ तक क्लियर है सबको? sin mx upon 2m raised to 4. If this is clear, I have a question for you. So what will be the particular solution of this particular equation? इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है ढूंढिए. Come on, do it quickly. How much is the particular integral? Am I audible? Yes, ma'am. Yes. क्या आंसर आएगा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल? Cos mx upon m raised to 4 plus a raised to 4. Perfect. Very good. That's perfect. d रेस टू 4 की जगह पर a रेस टू 4 रखा जाता है. यहाँ पर a की वैल्यू m है, m रेस टू 4 प्लस a रेस टू 4. cos mx अपॉन m रेस टू 4 प्लस a रेस टू 4. इज दिस क्लियर? आ रहा है सबको समझ में? व्हाट विल बी द आंसर? cos mx divided by m raised to 4 plus a raised to 4. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. ये क्लियर है तो मैं और देती हूँ. यस. इस एग्जाम्पल का क्या आएगा? डी स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 ऑपरेटिंग ऑन वाई गिविंग cos 2x प्लस 3. डी स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 वाई इज इक्वल टू cos 2x प्लस 3. Answer. Four plus a raised to 4 plus a raised to 4.
हाँ, मैंने आपसे पूछा पर्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू. पर्टिकुलर इंटिग्रलची व्हॅल्यू सांगा. What's the value of particular integral for this? Yes, anyone? Particular integral is equals to yes, quickly. Particular integral is equals to yes, anyone? Particular integral is equals to see, it is 1 upon d square plus a raised to 4. हाँ, कोई बता रहा है कोई? Yes, आशीष. Yes, आशीष. d square plus 1 upon d square plus a raised to 4 ऑपरेटिंग ऑन cos 2x plus 3. a का वैल्यू 2 है, d स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर रखना है. तो द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज cos 2x plus 3 डिवाइडेड बाय -4, 2 का स्क्वायर 4, 4 को माइनस साइन देना है, -4 प्लस a raised to 4, दैट्स इट. cos 2x plus 3 अपॉन a raised to 4 minus 4. What is the answer? Answer is cos 2x plus 3 divided by a raised to 4 as it is -4 माइनस ए स्क्वायर. ए का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 विथ अ माइनस साइन शुड बी द रिप्लेसमेंट फॉर डी स्क्वायर. दिस इज द आंसर. फेलियर. So that is why this formula will not work. And then what will be the formula? तो क्या फॉर्मूला रहेगा फिर? एनी गेस? जैसे एक्सपोनेंशियल में पहली बार केस फेल हुआ था तो फॉर्मूला क्या था? तो वैसे ही हाँ 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 F डबल F डैश. एफ डैश. वेरी गुड. अगर फेल होगा तो फॉर्मूला विल बी, यहाँ पे केस फेल हो रही है तो फॉर्मूला विल बी एफ डैश. मतलब आपको करना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन. नॉट ओनली दिस, पर आपको यहां पे लेना पड़ेगा इंटू एक्स, एक्स इंटू 1 अपॉन एफ डैश. तो ये जो फंक्शन रहेगा ना पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेना. डिफ्रेंसिएशन के बाद में डी स्क्वायर की जगह जाएगा माइनस ए स्क्वायर. अभी कीजिए ये फॉर्मूला लगाकर. केस फेल्युअर झाली ना, एकदा केस फेल झाली की एक एक्स घ्यायचा, एक्स इंटू डिनॉमिनेटरच्या पॉलिनॉमियलचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आणि तो नवीन पॉलिनॉमियल त्याच्यावर ऑपरेट करायचा. आणि नवीन पॉलिनॉमियल ऑपरेट करताना आधीचाच फॉर्म्युला डी स्क्वेअरच्या ऐवजी मायनस ए स्क्वेअर.